Okay, fine. So let's begin with the discussion of AIMT2 quant section. Question number 45 on the screen. Let's start with a selection of questions. Question number 45. Something seems to be from percentage. I guess you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 46 on the screen. Again, something from profit loss. Ideally, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 47. Probability you could have skipped it for now because although we are done with it, but ठीक है, as of now एक बार skip करते हैं because largoti पे नहीं हुआ है and others might not be having that surety about it. Skipping it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 48. I guess you could have skipped it for now. Permutation combination से related लग रहा है मुझे, so you could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 49, time speed distance, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 650, geometry हटा दीजिए. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 51, something from averages, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 52, seems like number system, should have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 53, logarithm progressions का mix है, you could have attempted it. पार्ट एक बार स्किप करते हैं यार, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 54, समथिंग फ्रॉम प्रोग्रेशंस, आई गेस यू कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 55, समथिंग फ्रॉम एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 56, नंबर सिस्टम, शुड हैव स्किप्ड इट. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 57, कंपाउंड इंटरेस्ट, यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 58, something from functions, could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 59, geometry लग रहा है, skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 60, functions, skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 61, number of integral solutions होते हैं, skip it for now. Inequalities है, Part 3 में डाल दीजिए. Question number 62, profit loss का लग रहा है, I guess I'm not sure of it, but could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 63, something from, I guess, percentages, so you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 64, search indices से लग रहा है, skip it for now. Part 3 में, Part 2 में डाल दीजिए. Question number 65, something from factors, number system, could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. And question number 66, something from, I guess, time and work, could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. So let's start with the discussion. Just give me 1 second for that. Okay, fine. So let's start with it. सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन था? 45. बताने का है किसी को? Anyone No, having a sir. doubt can ask. Anyone? No, sir. नहीं है. So I guess we can go ahead. Next question. 46. बताने का है किसी को? हाँ जी, sir. चलो. Yes, sir. Let's start. Okay. Amitabh buys 40 kg of wheat at a certain price and then puts its markup by marks it up by 25%. He sells 6 kg of the wheat at mark price, 9 kg at 40% discount on the mark price, exchange with this. अरे यार, ये तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन था. सीपी ले लो 100 पर केजी, टोटल सीपी हो गया 4000. हाँ या ना? हाँ, sir. एसपी एमपी हो गया 125 पर केजी, 40 किलो का हो गया 5000. हाँ या ना? इसमें से स्टार्टिंग का 6 केजी, जिसका सीपी था 600, जिसका एमपी था 125 के हिसाब से 750, उसको आपने बेचा. ही सेल 600 मार्क प्राइस ओनली, मतलब 750 में सेल कर दिया. नेक्स्ट 9 केजी, जिसका सीपी था 900, जिसका एमपी था आई गेस 1125, उसको आपने बेचा 40% डिस्काउंट पे.
तो एसपी कितना हो सर गया? यस, सर क्वेश्चन आ तो गया बट इसने टाइम लिया काफी। ये आपका ही अकाउंट खुला हुआ है? हाँ सर। अच्छा, यू हैव टेकन लगभग 6 मिनट्स। मैम देखिए, हम्म होगा तो ऐसे ही, इसको छोटा करने का कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ, इस हम्म कैलकुलेशन में अगर आपको टाइम लग रहा है तो दैट इज समथिंग यू कुड हैव वर्कड अपॉन, कुड हैव यूज्ड हम्म, कैलकुलेटर। बट यस, तरीका यही रहेगा, ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। मतलब वी कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर दिस। ठीक है सर। आगे एक्सप्लेन करने का नीड है? नो सर, मेरी तरफ से तो नहीं। एनीवन एल्स? किसी को चाहिए? बता दो सर पूरा एक बार। यार जबरदस्ती थोड़ी है ना ऐसे कराने की। अरे नहीं, क्वेश्चन आधा थोड़ी छोड़ोगे बीच में। छोड़ देंगे, कोई पाप थोड़ी लग रहा है, पूजा थोड़ी है। चालू से देखो। चलो बता देते हैं। करो 1125, 40% सब्ट्रैक्ट करना जल्दी से। 675। हाँ। आपने 40% डिस्काउंट दिया 125 पे, हाँ ठीक है। इसके बाद एक्सीडेंटली आपका 5 kg वेस्ट हो गया। इसका सीपी था 500, लेकिन एसपी इसका हो गया 0। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस इज 15 एंड 5 20 20 kgs आपका हो गया 40 में से, तो रिमेनिंग 20 kgs इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। ठीक है। टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 40%, सीपी अगर 4000 था, प्रॉफिट 40% है, एसपी कितना हो जाएगा? बोला करो ना, 5600। हाँ। लिखने के बाद बोल दो। 5600 में से 750 और 675 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। 13 14 25, तो बचा कितना? 41 4175। 4175 आपका एचपी बचा। कितने हम्म किलो का? तो पर केजी का बताइए। 208.75। ठीक है। और इसमें क्या किया था इसने? न्यू मार्क प्राइस को भी A% से इंक्रीज किया था। मतलब आपका मार्क प्राइस था 125, इसको आपने A% से इंक्रीज किया, और अब आपका वैल्यू आ गया 208.75। कोई सॉल्व करके बताएगा कितना आ रहा है इक्वल टू? It will be 20875 upon 125. 20875 upon 125. 208 into 100 divide by 125. 167। 167 minus 100, 67। तो 67% का इंक्रीमेंट था। A equal to 67, दैट्स द करेक्ट। ओके। क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 49। 49 बताना है किसी को? यस सर। ठीक है। Jake completes a journey in such a way that he starts at a certain initial speed, and then after every hour he triples his speed and reaches the destination at scheduled time. And if he completed his journey traveling at the initial speed, he would have taken 10 times the scheduled time. Find the scheduled traveling time if the total distance traveled is 320 kilometers. ठीक है, किसी का आंसर आएगा? यस सर। कैसे किया मैम? सर S+3S+9S मतलब टिल करके देखिए, सबसे इक्वल पहले टू आपने में। स्पीड एस ले लिया, हाँ। फिर फिर मैंने 3S लिया। अच्छा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे? सर टाइम मैंने ये एक एक आर का लिया है। 1 RE से मतलब मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्लियर है एवरीवन? हाँ। ठीक यस है। सर। कहां सर तक फिर लेके जाएंगे? 9S। सर मैंने 27S तक ही लिया था एक बार। अब ये आपको कैसे पता चला 27 एस तक ही लेना? सर क्योंकि मैंने इक्वल्स टू में ना दूसरी कंडीशन से 10ST लग दिया था 320 की जगह। और फिर मैंने टी की जब वैल्यू 4 डाली थी ना तब मेरा 4 आवर्स में बैठा था। मतलब हिट एंड ट्रायल से कर लिया मोटा मोटी। यस सर। पर हाँ 4 तक डालनी पड़ी थी सर। चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहले घंटे में आपकी स्पीड एस थी, देन 3S हो गई, देन ट्रिपल हो गई, 9S हो गई, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग 3 टाइम्स इन द एवरी सक्सेसिव आवर, राइट? आप ये एन टर्म्स तक लेके जाएंगे, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 320 320। किलोमीटर। 320 किलोमीटर। ठीक है। यहां से वैल्यू निकल सकता है आपको, हाँ या ना? क्या हाँ सर? सर।
यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा इसका। यस सर। अरे कैसे? कैसे निकल जाएगा, दो वेरिएबल है, एस के साथ एन भी तो है अभी। वही तो। नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ पता है आपको? हाँ कैसे कर देते तुम? अच्छा वो पूरी जर्नी अगर एस की स्पीड से ही करता, ही वुड हैव टेकन 10 टाइम्स द शेड्यूल टाइम। इसमें अगर आपके एन आवर्स लगे तो पूरी जर्नी वो एस की स्पीड से करता तो उसको 10 एन आवर्स लगते। हाँ या ना? हाँ 10 है हाँ यस सर। If I'll take s common and I'll cancel it out in both the equations, what I'll be having is ये 1, 3, 9 up to n terms का summation है, हाँ which is equals to 10n। अच्छा gp का फॉर्मूला लगाता हूँ, this will be a r की पावर n minus 1 upon r minus 1 equal to 10n। हाँ ठीक है, 3 की पावर n minus 1 equal to this is 80 this is 2 20n। यस ठीक है, अब इसके बाद हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को लॉग लेना पड़ेगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जस्ट थिंक ओवर इट कि आप n की वैल्यू को पहली बात तो 1 और 2 नहीं रख सकते, बिकॉज आपका नंबर 20 से बड़ा होने वाला है। n को अगर 3 पुट करता हूँ तो दिस इज 27 माइनस 1, बट वो 20 का मल्टीपल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा हाँ। तो n को अगर 4 पुट करता हूँ तो 81 माइनस 1 बन जाएगा। 84 का मल्टीपल होता है। तो इधर से मुझे पता चल गया n इक्वल टू 4 है, हम्म बस n ही तो निकालना था। नॉर्मल केस में शेड्यूल टाइम जो था उसका n आवर्स लग रहा था, यानी 4 आवर्स लग गया। क्लियर है? यस सर। चले आगे। हाँ जी सर। Shall I remove this? यस सर। Okay. Next, please. Next question. 51 किसी को बताने का है? यस सर। The average monthly income per member of a family is this, and the average number of members in the family is this. What is the average monthly income per member when the total income of the family is maximum in a particular month? क्या बात कर रहे हो? मतलब ही नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को तो इसका। किसी को आया क्या? सर इसका आया मेरे को। मैक्सिमाइजेशन करना है देखो सर, मतलब दोनों को इनटू कर दिया और डिफरेंशिएट। बराबर, डिफरेंशिएशन सबको आता है ना? हाँ हाँ। ये दो ही जने हाँ क्यों बोल रहे, बाकियों को आता है नहीं? Yes, so यस सर। ये तो हो जाना चाहिए था बहुत इजी। सर हो गया सर, ये हो गया। हाँ so ये वाला हो गया था। तो फिर डाउट क्यों पूछ रहे हो? हो गया था तो। नहीं आप कुछ अलग तरीका बता देते इसको, फिर किया तो ऐसे ही था डिफरेंशिएशन करके। मैं क्या जादू करके दिखाऊंगा कि इसमें? चलो बता देता हूँ। ये बेस सिस्टम आता है नहीं आता, उसका भी एक क्वेश्चन आएगा शायद आगे जाके। आता है सर। केवल एक बच्चे को आता है? सर अभी सर भी बताया है डीआई की क्लास में सर ने। अरे वो अरे बाइनरी अभिषेक था। सर ने बताया, किसी ने भी बताया, वो आता है नहीं बेस आता वो सिस्टम बताओ। बाइनरी सर, बाइनरी वो जो था वो बेस सिस्टम ही है ना, बेस 2 बेस 8। तुमको ये नहीं पता? अभी तुम बोल रहे हो अभिषेक सर ने बताया, तुमको यही नहीं पता बेस सिस्टम में बाइनरी आता है क्या आता है? मेरे हिसाब से बेस है, वो वरुण ने वो बोला था इसलिए कंफ्यूज। अच्छा चलो ठीक है, बाकी चारों पलक यही नाम दिख रहे हैं मेरे को बाकी। हाँ सर आता है सर। तो मैडम फिर आपको अलग से इनविटेशन दूं जवाब देने के लिए? बोलते क्यों नहीं आता है तो? सॉरी। So let's continue. हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए पर मेंबर का इनकम है इतना, नंबर ऑफ मेंबर्स है इतना, ये टोटल मंथली इनकम आ गया क्या फैमिली का? यस सर। यस सर। Yes, so इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का है। हम्म
कैसे करूंगा? मल्टीप्लाई करके पहले तो डिफरेंशिएट। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा मेरे हिसाब से, -8x², 45, 180 -20 प्लस 160x हाँ प्लस 450, यही आ रहा है। यस सर। डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी से इसका। 16 minus 16x 16x plus 160 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10 10। 10 हाँ इसका 10 का क्या करूँ? पुट कर देंगे put ऊपर। करेंगे पुट यहाँ कर पे देंगे इधर, ठीक ऊपर है। इक्वेशन 45 माइनस 20 25 इंटू 40 प्लस 10 50 कितना होता है? 1250 टोटल क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज? अच्छा केवल एवरेज ही तो पूछा है यार, पूरे को क्या मैक्सिमाइज करवा दो। ये आपका एवरेज था हाँ 25, और यहाँ पे देखो 4x माइनस इसके आगे 1000 रुपीज लिखा हुआ था। यस सर। 25,000 करेक्ट आंसर 25,000। बेसिकली होगा क्या, अगर कोई 25 लिख के आ जाएगा, he'll get a wrong answer for this. He won't get marks for that because it's a theta question. तो ये याद रखना पड़ता है कि भाई क्वेश्चन में पूछा है इन रुपी पर मेंबर, 1000 में अपने को बना के लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सर अगर वो इन 1000 लिखता तो अपन 25 लिखते तो हैं। फिर केवल 25 छोड़ सकते हो। हाँ रिमूव कर दूं? चले गो हेड। यस सर नेक्स्ट 55 बताने का है किसी को? यस सर। हाँ जी सर बताऊं? ये भी हाँ पूछ हाँ yes sir A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed and replaced, and the same amount of cocoa powder is formed in the mixture. If the ratio of coffee and cocoa is ratio of cocoa, अबे यार ये क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम? सर रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगा दूं क्या? लगा दो सर। You are removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing it with cocoa powder, right? The same amount is again removed and is replaced with cocoa powder. कॉफी पे लगेगा, cocoa powder पे लगेगा? कोकोआ कोकोआ इनिशियली कितना था? पता नहीं। अरे पूरा वही था ना। By removing a certain amount of coffee, you are not removing a mixture, you are removing coffee. मतलब इनिशियली पूरा कॉफी ही था। हाँ Now यस सर। coffee left is, जवाब सर दे ये दो। कोकोआ पे लगा रहे हैं ना। कॉफी पे तो लगेगी ना मैम, स्टार्टिंग you में are तो पूरा replacing it कॉफी with था। cocoa 25 powder. by 36 अच्छा ओके हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं टोटल क्वांटिटी? 36 सर हाँ ये कॉफी का अमाउंट था ना, ये तो आप तो कोकोआ पे लगा रहे हो। फॉर्मूला किस पे लगेगा, कॉफी पे या कोकोआ पे? कॉफी कोकोआ। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? फिर यू ये आर कॉफी पे लगेगा रिप्लेसिंग ना। इट विद कोकोआ पाउडर। कॉफी पे लगेगा कोकोआ पे लगेगा? कॉफी पे। तो कॉफी पे ही तो लगा रहा हूँ। हाँ फिर ठीक है। कोई दिक्कत? नो नहीं सर नहीं। टोटल क्वांटिटी मैंने 1 लिया है यहाँ पे, माइनस क्वांटिटी रिप्लेस पता नहीं, टोटल क्वांटिटी 1 लिया और 2 बार प्रोसीजर किया है। 1 माइनस एक्स हाँ अपॉन 1 कितना हो गया? 5 से। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं। चलो आगे चलते हैं। Then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q. मिक्सचर P क्या है? जो पहला ट्रांजेक्शन होने के बाद बना। हाँ मतलब इनिशियली क्या हुआ, मैं एक काम करूं यार, इसको ऐसा ले लूं कि टोटल कॉफी आपके पास थी, सॉरी, कॉफी और कोकोआ आपके पास 36 कॉफी थी। आपने उसका 1/6 यानी 6 रिमूव किया और ये ऐड कर दिया, बराबर? हाँ सर। फिर इसका 1/6 कितना होता है? 6। 6 में से 5:1 के रेशियो में निकलेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 1 निकलेगा। अब ये जो 36 का रेशियो है ये सर पी वाले का है ना? हाँ अभी बता रहा हूँ पूरा। यहां तक कोई दिक्कत आया क्या? नहीं। ये पी है और ये क्यू है। हम्म, रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी एंड इन मिक्सचर क्यू, आंसर? हाँ, सर ये आपने कॉफी में जो 36 लिया है हाँ वो टोटल मिक्सचर वाला 36 लिया है। हाँ जी मैम।
अच्छा सर। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 55 हो गया, 57। बताने का है किसी को? यस सर बता दो। Kalyan borrows 75,000 from bank at 15% commodities. He repays it in 3 annual installment. They are in arithmetic progression. बढ़िया। आपका how much did he pay in the first year? तीनों इंस्टॉलमेंट एपी में है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले लूं क्या? यस सर। यस सर। इनका सम 97500। ए कितना आ जाएगा? 32500। पक्का ना? हाँ सर पक्का। यस सर। ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने पे किया 97500 इक्वल्स टू 32500 माइनस डी अपॉन इंटू 115 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 32500 इंटू 115 अपॉन 100 प्लस 32500 प्लस डी इंटू 1। ये इक्वेशन समझ में आएंगी? सर सर प्लस डी क्यों करो? ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 1 प्लस आर अपॉन 100 से, थर्ड को 1 से। याद आ गया? हाँ सर। यस सॉल्व सर। कर लेंगे, करके बताओ। कर लेंगे सर। चलो ठीक है, शैल वी गो इट? यस सर। यस नेक्स्ट प्लीज। 62। 62 बताने का है किसी को? यस सर। यस, देखते हैं। A merchant can buy goods at the rate of 75 per good. The particular good is a part of an overall collection and the value is linked to the number of items that are already on the market. So the merchant sells first good at ₹3, second at ₹6, third for ₹12, fourth for ₹24 and so on. If he wants to make an overall profit of at least, what is the minimum number of goods he sells? CP की बात करते हैं। X goods की 75, N goods की 75N, हाँ है ना? हाँ SP की बात करते हैं, पहला 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24 अप टू N टर्म्स। और प्रॉफिट होने के लिए ओवरऑल SP शुड बी ग्रेटर देन CP, हाँ है ना? यस यस सर। ठीक है, इसका सम निकालते हैं। A R पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 75N। 3 से 75 काट दूं, हाँ 2 की पावर N माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 25N। 25 एंड इसके बाद हिट एंड ट्रायल ही लगेगा, क्योंकि अगेन सेम एक इक्वेशन ऐसी आई थी, मैंने पहले भी बताया था, लॉग से करना पड़ेगा अगर करना है तो। उससे बढ़िया हिट एंड ट्रायल लगा दो। एन को वैसे भी देखो मैं 4 तक तो पुट करूंगा ही नहीं, क्योंकि एन 4 तक इटसेल्फ इज लेस देन 25, तो ये बाद में वो तो बहुत ही बेवकूफी है, बराबर? एनी डे अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ 7, 8, 9, 10 है, मैं 7 को पुट करता हूँ। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 माइनस 1 इज 127 और ये हो गया जो कि 175, डिविजिबल है। हाँ या ना? गलत है? हाँ सर। 2 की पावर 8, 256 माइनस 1, 255 और 25 into 8, 200। 200 गलत या सही? सही है। आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। यस चले आगे। चले रिमूव दिस। यस सर। सर, इसको मतलब और कोई तरीके से कर सकते हैं क्या? और कोई तरीका? हिट एंड ट्रायल लगा दो यार। हिट एंड कैसे? ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल करके देख लो कि भाई 3 कॉमन ले लो इसमें, 1, 2, 4, 8, ये जीपी बन जाएगा। हाँ और इसका सम आपने वो पता ही है कि 2 की पावर n तक जाता है तो नेक्स्ट पावर -1 होता है।
हाँ उससे करके देखो। अल्टीमेटली वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा यार। ठीक है। हटा दूं? चले आगे। 63। हाँ सर 63। बताने का है किसी को? यस सर Yes, बताओ। यस sir. सर। ABCD share a loop. A gets A% of the total, B gets B% of the remaining, C gets C% of the remaining, and D gets the rest. C gets B% less than what A gets, and D gets double the amount than C, and 5B equal to 9. क्या सब कुछ दे रखा है? तो टोटल कुछ था 20 टोटल में से। अच्छा सर दे रखा है 20,000। हाँ टोटल 20,000 है। डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, सी प्लस डी। ठीक है, टोटल 20,000 का। ए को कितना दे दूं? A%। रिमेनिंग कितना बचा? B%। 20,000 माइनस A%। अच्छा हाँ ठीक है, बी को कितना दे दूं इसका? B%। इसका B%। रिमेनिंग कितना बचा? 20,000 100 माइनस A/100 100 माइनस B/100। कोई दिक्कत? नहीं सी No, को sir. कितना दे दूं? C% इसका लास्ट वाले का। ठीक है, हम्म एंड रिमेनिंग दे दो डी को। ठीक है, हम्म अब दे रखा है डी गेट्स डबल द अमाउंट देन सी। ये समझ में आया? इस लाइन का मतलब बता सकते हैं? जितना टोटल अमाउंट सी को मिला उसका डबल डी को मिला। D को मिला है हाँ जितना D को मिला है। नहीं इसका मतलब है जो रिमेनिंग वैल्यू था ना, ये सी डी में किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? 2:1। 2:1। 1:2 है। 1:2 हाँ। और सी को कितना मिला है? 1/3 3 1/3 ऑफ टोटल। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो तो सी की वैल्यू 33.33% होगी। हम्म इसका C% ही तो दिया है और आप बोल रहे हो इसका 1/3 दिया है, मतलब 33.33% दिया है। हाँ या ना? Yes, sir. सर 1:2 तो C और D का रेशियो है तो ये टोटल का 1/3 कैसे। सुनिए, इस अच्छा वैल्यू को आपने CD में डिवाइड किया, हाँ, हाँ हाँ हाँ। और C को 1/3 दिया टोटल का, हम्म और आप बोल रहे हो इस वैल्यू का C% दिया, मतलब इस वैल्यू का 33.33% दिया। हाँ हाँ 5B इक्वल टू 9, C को 100/3 लिख दूंगे। 1 20 1 3, यानी B को 60% मिला। हाँ या ना? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। सर बट चलो वो अमाउंट 1/3 निकल जाएगा ना है ना। 20,000 में से। सॉरी, हाँ हाँ भी सब कर देंगे। वरुण क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था वो 1/3 जो है ना सी का, हाँ, तो डी के रेस्पेक्ट में ना, तो बी वाली में अपन कैसे पुट कर सकते हैं उसको। डी के रिस्पेक्ट में नहीं मिला, डी के रिस्पेक्ट में तो 1/2 मिला है हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो सी और डी में बटेगा। भाई। लेकिन अगर ये अपन बी सुनिए, सी सुनो सुनो सुनो, तो मिला। अरे मालिक सुन लो, इस वैल्यू को हाँ उठा के मैं ले आया। ये कुछ भी वैल्यू हाँ, है, मैं बोलता हूँ 10,000 रुपए ही। ठीक है। इसमें से आप इनको 1:2 के रेशियो में दे रहे हो। हाँ 10 की जगह एक काम करो, 6,000 कर दो। सी को कितना दोगे? 2,000। और बी को? 4,000। 4,000 तो सी को कितना दिया? 33.33% परसेंट ऑफ टोटल। 6,000। हाँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ C गेट C% ऑफ द रिमेनिंग।
तो C% ये है, हाँ तो ये तो 33.33 हो गया ना, तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि C की वैल्यू 33.33% है। तो फिर इसको आपने 9C में पुट कर दिया। हाँ, नहीं करूँ? हाँ मेरे को वही समझ नहीं आ रहा क्यों पुट कर दिया। क्यों कर दिया? समझ गया सर, समझ गया। चलो आगे चलते हैं। एक लाइन और दे रखी थी। C gets B% less than what A gets. इस लाइन का मतलब समझे? एलन को जितना मिला है उससे 60% लेस मिला है सी को। C को ये मिला है। हाँ, हाँ। ये इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। C/100 को 1/3 पुट करूँ। हाँ हम्म। और B को 60। okay, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। नहीं। No, no, sir. C को जो मिला है ना, वो A से 60% कम है। हम्म। मतलब इट इज 40% 40%। ऑफ A। हाँ। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो No, सर। sir. नो सर। A को इतना मिला था। हम्म। ये 200 से 200 काट दिए, 20 20,000 से 20,000 काट दिया, 40 से 40 काट दिया, 100 माइनस A इक्वल टू 3A हो गया, और इक्वल टू 100, A इक्वल टू 25 हो गया। हाँ। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. चालू करते हैं वापस से। 20,000, A को कितना मिला? 25%, यानी 25%। 5,000। हम्म। क्या कितना? 15,000। 15,000 में से B को कितना मिला? 60%। इसका 60% होता है 9,000। बचा कितना? 6,000। 6,000 में से C को कितना मिला? 33 130 2,000। 2000। और हाँ। D को कितना मिला? 4,000। 4000। What is the difference between B's share and combined share of C and D? B का शेयर 9,000, C और D का 9000। कंबाइंड 6,000। डिफरेंस 3000। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. सर बहुत बड़ा नहीं हो गया है सोल्यूशन? 100%। ठीक है, देखो अगेन प्योरली रॉन्ग सिलेक्शन। इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि कम से कम बता रहा हूं, कम से कम भी 5 मिनट तो ले जाओ, हम्म। इससे कम में नहीं हो पाएगा। फिर वही कैटेगरी जिनको 4 ही क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए तो सफिशिएंट है, वो कर सकते हैं। आंसर निकल जाएगा घूम फिर के, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। चले आगे। यस सर। यस सर। रिमूव कर दूं? हाँ। सर एक, वापस चाहिए? हाँ सर प्लीज। जादू करोगे मैं मैडम? बस, सर अंडो कर दो प्लीज सर। अरे अंडू नहीं होता मैडम, ये जादू होता है। हाँ सर, वही वही। जादू नहीं है तो बोलो, हटा दूंगा वापस से। नहीं नहीं, सॉरी सर। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके मैम। चले? जी यस सर। सर। 66। एक सेकंड। सिक्सटी सिक्स यस सर। बताने का है? नो सर। एक जने को हाँ नो बोलना पड़ेगा, सर। तभी बाकी जनता बोल पाएगी। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं नहीं सर। किसी को नहीं पूछना? यस सर। अरे अब एक हाँ कर दिया, 2-3 जने और आ जाओ। बता दो सर। देखो आगे बढ़िया। साहेब, रॉनी एंड जूली स्टार्ट वर्किंग, टाइम एंड वर्क है, on a contract to build a farmhouse. Sahib and Ronnie can build this farmhouse together working in 18 months. Ronnie and Julie working together can build it in 30 months. Julie Sahib in 36 months. If the person who is near the file, अरे यार ये क्या पूछ लिया?
साहेब रॉनी को लगते हैं 18 महीने, रॉनी जूली को लगते हैं 30 मंथ्स, जूली साहेब को लगते हैं 36 मंथ्स। आई एम अज्यूमिंग द टोटल वर्क टू बी 180 यूनिट्स। ये पर मंथ का करते हैं अपना 10 यूनिट, ये करते हैं 6 यूनिट, ये करते हैं 5 यूनिट। इक्वेशन तीनों ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ आर प्लस एस प्लस जे हो गया 21 21 यूनिट, यानी आर प्लस एस प्लस जे हो गया 10.5 यूनिट्स। 10.5 यूनिट्स। अगर ये 10.5 है, एस प्लस आर 10 था, तो जे पता चल गया 0.5 यूनिट, यस सर। एस पता चल गया 4.5 यूनिट्स, और हम्म आर पता चल गया 5.5 यूनिट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन हु इज नीदर द फास्टेस्ट नॉट द स्लोएस्ट, मतलब दिस वन। उसको कितना महीना लगेगा? 180 को 4.5 से डिवाइड किया 40। यस सर। यार जबरदस्ती क्यों पूछते हो तुम लोग? सर अब वरुण गायब हो गया। कहीं नहीं गया, यहीं तो जवाब मैं दूं क्या तुम्हारा? बोला तो सही से, आ गया समझ में। तो आ गया बोला तो पूछा लौटने का। अरे यार चलो नेक्स्ट प्लीज, हटा दो इसको, 47। रिमूव कर दूं। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। 47। 47 बताने का है किसी को? नहीं। यस सर। अरे प्रोबेबिलिटी पूछने का मैडम आपको? यस सर। चलो जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं। चलो लेट्स कंटिन्यू। 5 delivery drones are stationed at the corners of a pentagon। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे 5 ड्रोन्स है, ठीक है। If each Yes, drone sir. takes off and flies along the edges of the pentagon in a randomly chosen direction at a uniform speed, what is the probability that no two drones will collide with each other? पहले ड्रोन के पास कितने डायरेक्शन है जाने के लिए, घूमने के लिए? इस वाले ड्रोन के पास कितने डायरेक्शन है? 4। 4 का है मैम। सर 2 है ना? या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके। दूसरे के पास सर उसके पास भी तो ये। ये टोटल केसेस हो गए। हाँ। फेवरेबल केस कब कोलाइड नहीं करेंगे? ओके सर, एक ही केस जब सब मैडम लोग तो सेम डायरेक्शन में जा रहे या हैं। तो सब क्लॉकवाइज जाए या सब एंटी क्लॉकवाइज जाए। हाँ सर। 8 देने का आंसर आ गया। सर पहले मैंने 4 ले लिया था, नीचे आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लियर है। यस सर, थैंक यू। कैन बी गो अहेड, यस बता दो सर। मैम। नेक्स्ट यस। प्लीज। 48। बताने का है किसी को? नहीं सर। किसी को भी नहीं बताने का? सर पीएनसी है, बता दो सर। पीएनसी तो पता सर था। पीएनसी थोड़ी ना ये। पीएनसी है हाँ मैडम। हाँ सर पीएनसी है। बता दो सर। अबे यार जबरदस्ती क्यों पूछने का है तुमको? नहीं नहीं सर, वो पीएनसी नहीं लग रहा था ना मेरे को तो पहले। समझ में आ गया सर, इसलिए पूछ रहा। किसी का आंसर आएगा इसका? नहीं आया सर। अरे यार तुम्हारे पास 3 पैरेलल लाइंस है और 2 पैरेलल लाइंस और, कितने हाँ। इंटरसेक्शन पॉइंट बने? 6, है। अच्छा 3 और होती तो कितने बन जाते? 9, 9। 4 और होती तो कितने बन जाते? 12। मतलब when you are having 3 parallel and 4 parallel, you are having 12. When you are having 3 and 3, you are having 9. When you are having 3 and 2, you are having 6. Number of intersection point कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ सर इनटू हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स लाइन से मल्टीप्लाई वाई लाइन से टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट है 30। हम्म इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स वाई को पास पास लूं या दूर दूर लूं? पास सर पास इक्वल 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 तो पास ले नहीं 6 पाएंगे, रूट into में आएगा। 5 हाँ सर मतलब क्लोजेस्ट 6 क्या है, into 5 एंड 5 6। हाँ चलो ठीक है। अब आप नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए? 2 दो। कितनी है आपके पास? 3 3 तो कहाँ है 3? ये तो एग्जाम्पल है भाई, ये निकालो सर 5 ना। पाँच पाँच 5 पाँच और वर्टिकल लाइंस कितनी है आपके पास? 6 आपको कितनी चाहिए? 2 2 सर अब मैं इसको 6 into 5 ले लेती तो तो गलत हो जाता मैडम। तब भी वही अरे होता। यार क्या फर्क पड़ रहा है मैडम, आपका क्वेश्चन है, आपका अच्छा आंसर है, जो सॉरी लेने का है लो हाँ आप। हाँ आपका ही पेपर है, अच्छा बिगाड़ के आने का है, बिगाड़ो, आपका है। समझ में आया? सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ती उससे। 6c2 × 5c2 लिख देते हाँ मैडम, सर मल्टीप्लाई में देखा क्या फर्क मैंने पड़ता है? हाँ 2 × 3 कर रहे हो, 3 × 2 कर रहे हो। हाँ जी सर चले आगे, हम्म रिमूव कर दूं? यस सर यस सर नेक्स्ट प्लीज। 53 बताने का है किसी को? यस सर Yes, sir. XYZ are three positive integers in GP such that y minus x is a perfect square. जो इच्छा है वैल्यू ले लो। 1 2 4 1 2 4 में 2 - 1 परफेक्ट स्क्वायर बैठ रहा है क्या? सर नहीं 25 16 25 और 16 16। यार एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे हिसाब से आगे y जाके अटकेगा, क्योंकि Base एब्सोल्यूट 12 वैल्यू है. इक्वल टू 9/2 दे रखा है। दिक्कत आ सकती है। नहीं यार, वैल्यू नहीं ले पाएंगे, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 9/2 से इक्वेट कर रखा है, तो जरूरी नहीं है आपका वैल्यू फिट बैठे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये ये और ये पहला टर्म को आप एज इट इज रहने दो, log y² बेस 12, कोई दिक्कत? नहीं दूसरे टर्म को ढंग से किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, ऐसे लिख दिया। Yes, sir. किसी को दिक्कत है तो बोल देने का प्लीज। नहीं पक्का दिक्कत नहीं है, चले आगे। हाँ बढ़िया Yes, बात। sir. इसको y² √xz × xz अपॉन √y की पावर बेस 12 इक्वल टू 9/2। अभी किसी को दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। ये लॉग हटाया, ये उधर जाके बन गया 12 की पावर 9/2, हाँ और ये बन गया, ये हटा y√y, y² को √y से काटा, जो कि हो गया xyz की पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. किसी को दिक्कत आपने नहीं? y² √xz इंटू हाँ xz अपॉन √y, ये था। हाँ y² अपॉन √y कितना होता है? y की पावर 3/2। हाँ या ना? हाँ 2 - 0.5 इज 1.5। यस xz सर की पावर 1 और xz की पावर 0.5 कितना होता है? xz की पावर 3 1.5 दैट इज 3/2। हाँ या ना? हाँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? समझ गया सर और इसको मैंने काट दिया, ये क्यूब रह जाएगा, मतलब xyz इक्वल टू 12 क्यूब। हाँ या ना? हाँ ठीक है। और आपसे ऐसा बोला गया है कि xyz जीपी में है, तो अगर x को a बाय r, y को a और z को ar दूं तो कोई दिक्कत? नहीं तो आपने क्या किया, a अपॉन r इंटू a इंटू ar इक्वल टू 12 क्यूब। इधर से मुझे पता चला a³ इक्वल टू 12 क्यूब और a इक्वल टू 12, कोई दिक्कत? नहीं y माइनस x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। y है 12 माइनस 12 अपॉन r, ये परफेक्ट स्क्वायर। अबे 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 9
तो या तो 9 होता है या फिर 4 होता है 4 है ना, या फिर 1 होता है। देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपने क्या बोला अभी? सॉरी सॉरी कम अगेन। सर आपने क्या किया अभी एंड में? मैंने बोला 12 माइनस 12 अपॉन आर इज द परफेक्ट स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, 12 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 149, हाँ या ना? राइट। अगर मैं 12 माइनस 12 अपॉन आर को इक्वल टू 1 रख देता हूं तो ये 12 अपॉन आर को 11 बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक। 11 हाँ हाँ बिल्कुल। और 12 अपॉन 11 आर नहीं, को 11 बनाने के और भी तो परफेक्ट स्क्वायर्स है सर। अभी अभी 9 एक एक वैल्यू लेके देख रहे हैं ना मैम। 12 अपॉन आर को 11 बनाने के लिए आर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, और अगर आर फ्रैक्शनल वैल्यू तो तीनों इंटीजर हो नहीं पाएंगे, गलत है ये तो। ओके राइट। 12 अपॉन आर को माइनस इक्वल टू 4 बनाने के लिए 12 अपॉन आर को 8 बनाना पड़ेगा, और अगर 12 अपॉन आर को 8 बनाना है तो आर को वापस से इंटीग्रल की जगह डेसिमल लेना पड़ेगा, ये भी गलत हाँ है। इक्वल टू 9 बनाना है तो 12 अपॉन आर को बनाना पड़ेगा 3, और 3 बनाते ही मुझे पता चल जाएगा कि आर तो 4 है। R4 है। और अगर आर 4 है तो एक्स क्या हो गया 12 अपॉन आर, वाई क्या हो गया ए, और जेड क्या हो गया 12 आर, 12 इंटू 4 48, 48 और 12 60 और 3 63 डिवाइडेड बाय 7 9 इज द करेक्ट। ओके गॉट इट कोई सर। दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं सर। No, Shall I sir. remove this? नो सर, जस्ट अ सेकंड। Take your time. यस सर डन। चलें आगे, हटा दूं? Yes, sir. चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 53 के बाद 54 किसी को बताने का है? यस सर। यस सर। देख लेते हैं। लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सारे टर्म्स मतलब अलग है इसका मतलब क्या है? तो सर, इसका मतलब इसका 1 1 जो 1 ये 2 2 2 का नहीं है ये कॉमन कोई। डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, हाँ, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा ताकि तो इसका सारे मतलब टर्म्स ये नहीं सेम कि ना आए। ए हर टर्म में एक वेरिएबल आ रहा है ए। नो 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 मैम, ऐसा है कि सारे टर्म्स कांस्टेंट यानी सेम नहीं आने चाहिए, और सारे टर्म्स सेम तब आते हैं जब कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाता है। मतलब मोटा मोटी हाँ बोलना ऐसे चाहता है कि कॉमन डिफरेंस जीरो ना हो, बस इतना सा क्लियर है। ठीक है। यस सर। चल सकते हैं आगे। जी सर। ओके, हाँ चलो आगे चलते हैं। ठीक है, let the sum of this be 80n plus n plus 1 n minus 3 by 3. Okay. Where a is a constant term, b is the common difference of this arithmetic progression, then the ordered pair d comma a 75. ठीक है बकवास, So इसमें क्या can लिखा we है? do it सर something like 1 और पहले 1 को पुट किया फिर 2 को पुट किया, ये फर्स्ट टर्म सर सेकंड फिर टर्म वो ऐसा? डी होगा आ जाएगा। भाई, एसएन क्या दे रखा है आपको 80n प्लस n प्लस 1 n माइनस 3 अपॉन 3a बराबर S1 क्या होता है A1, हाँ, which is equal to 80 plus n 1 1 plus 1 2 into minus 2 minus 4 by 3 है, 4 हाँ है ना? यस सर। S2 क्या होता है 160 8 प्लस 3 इंटू A1 माइनस plus माइनस A2 3 होता बाई है, 2। A1 plus हाँ A2 सर, which is 160 plus S को 2 पुट माइनस किया ना, N को 2 3 into minus 1 minus 3 upon 3 कट गया, माइनस है, हाँ है ना? यस सर। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका इन दो? अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपको? डी आएगा। A2 आएगा मैम, A1 प्लस A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
हाँ ओके ओके A2 आएगा 180 माइनस 160 माइनस 80 80 माइनस ए माइनस प्लस 4/3 ए प्लस A/3 यस सर। और अगर ये पता चल गया तो कॉमन डिफरेंस निकालने का है, निकाल लो। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 से 80 कट गया, A/3 माइनस 4A/3 5A/3 सॉरी 5A/3 तो आ रहा है। सर एक माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो मैम A/3 प्लस 4A/3 5A/3 बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ ओके। मैंने ये सही किया है क्या, दिस माइनस दिस? हाँ ये किया तो सही है मेरे हिसाब से। सर मेरा भी ऐसे ही मैच नहीं हुआ था टेस्ट में, मैंने भी सेम यही किया था। Just give me 1 second, 25 into 25 125। एक बार ढंग से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन है तो। n को 1 पुट कर रहा हूं तो मेरा पहला टर्म होगा 80 प्लस n को 1 पुट किया, सो दिस इज 1 + 1 2 1 - 3 -2 2 into -2 अपॉन 3a। तो ये -4/3 हो गया क्या? सही है। यस सर। n को 2 पुट कर रहा हूँ, ये हो गया 160। अच्छा प्लस 2 + 1 3 into 2 - 3 -1 अपॉन 3 कट गया a। 160 माइनस ए हो गया क्या? हाँ हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 160 माइनस ए एंड दिस इज 80 माइनस 4/3a, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कट गया 80 और ये हो गया प्लस का A/3, 80 का प्लस का A/3 और 80 प्लस A/3 में से 80 माइनस 4A/3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5A/3। सही तो आ रहा है यार। सर हाँ सर ये -4/3 में ये जो 3 है वो कटेगा नहीं? किससे? सर नीचे भी तो A/3 आएगा ना शायद। क्या A आ गया? किसी को कोई कैलकुलेशन एरर दिख रहा है तो प्लीज बताइए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। सर -A/3 नहीं होगा क्या? कहाँ पे? A2 में? 80 - A/3। मैम आप कैसे निकालते इसमें से इसको? आपको S1 में कोई गलती लग रही है क्या? नहीं नहीं, मैं तो डिफरेंस जब ये कर मैं रहे जो हैं बोल रहा A2 हूँ वो इक्वल्स टू सुनिए, हाँ। S1 में गलती लग रही है, नहीं S2 में कोई गलती लग रही है? नहीं। नहीं। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ A - 4/3। 160 में से 80 गया, 80 बचा, हाँ ये माइनस का A और ये प्लस का 4/3 हो जाएगा। सर सब्ट्रैक्ट करे तो नीचे प्लस से अरे यार माइनस। मैं नीचे में से ऊपर को अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, हाँ तो प्लस A/3 तो आएगा। 80 माइनस किया तो 80 आ गया, और फिर 4/3 पॉजिटिव का नहीं हो जाएगा? 4/3a। और एक नेगेटिव का A भी तो है, तो प्लस का A/3 तो आएगा। नहीं नहीं, 4/3a माइनस a। तो ये क्या होता है 4/3 माइनस A? प्लस का 1/3A। हाँ तो मालिक वही तो लिखा है। सर इनका गलत है सर। तो बिल्कुल क्या सर। क्या करते हैं, एक सोल्यूशन देख लेते हैं, विल गेट ए क्लैरिटी कि इन्होंने कुछ मिस्टेक किया है, अपना कुछ मिस्टेक है। अबे ये क्या बकवास किया है इन्होंने? n+1 n-3 और n-4 + 1 n-4 80n कट गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस 80 बच गया, n+1 n-3/3 and n-4/3, A/3 कॉमन ले लिया, n² - 2n - 3 और ये माइनस का n² प्लस का 4n, 80 + 2n - 3/3। n² से n² कट गया, 2n - 3/3a, d = tn - tn - 80 + 2n - 3/a 3a minus 80 minus twice of minus 1 डाला ना, तो 2n
-2 -3 -5 by 3। इससे ये कट गया, ये -3 और ये हो गया 2n -5 3 + 5। सही आ रहा है इनका तो यार, पता नहीं यार क्या कैलकुलेशन है उसके लिए। चलो एक लास्ट ट्राई और करके देखते हैं क्या पता आगे। The sum of first 10 terms of a non-constant arithmetic progression b, मतलब ऐसे ना आपको दे रखा है 80n प्लस n + 1 n - 3/3 into a। आप निकाल रहे हो S2 जो कि होता है A1 + A2 के इक्वल, और उसका वैल्यू है 160। n को 2 पुट करा है ना, 2 + 1 3 into 2 - 3 n + 1 n - 3 है ना, मैंने n + 1 n - 3 लिया। 2 - 3 इज -1/3a। ठीक है, तो ये हो गया 160 - a। ठीक है, S1 के लिए n को 1 पुट करा, A1 के इक्वल होता है 80 प्लस 2 इंटू -2/3a, which is 80 - 4/3a। ठीक है, तो A2 आ रहा है अपना सब्ट्रैक्ट करने पे 160 में से 80 गया 80, माइनस का a प्लस का 4/3a प्लस का 1/3a, और A2 पता है आपको, A1 आपको पता है 80 माइनस ऑफ 4/3a, तो सब्ट्रैक्ट करोगे you'll get d 1/3a प्लस 4/3 5/3a। सही आ रहा है यार, एक सेकंड और रुक जाओ, एक बार इनका देखते हैं। इनका tn आ रहा है 80 + 2n - 3, n को 2 पुट करो 80 प्लस a/3 आ रहा है। ठीक है, और n को 2 पुट 1 पुट करो 80 माइनस, या इनका 80 - 1/3 आ रहा है A1। A1 ना यार, अगर n को 1 पुट करता हूं तो 1 + 1 2 1 - 3 -2/3 है। पता नहीं यार, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा या तो। सर यहाँ पे इनका प्लस का 4n आ रहा है, पर ये माइनस का 4n होगा ना? नहीं मैम, प्लस का ही होगा ना। देखिए इन्होंने क्या किया, एक बार वापस से देखते हैं। ये Sn दे रखा था, इन्होंने Tn निकाला जो कि Sn - Sn - 1 होता है, ये अपने को पता है। तो Sn के लिए Atn n + 1 n - 3/3a सही है। ये तो आपका Sn हो यस गया एज इट सर। इज। n - 1 पुट कर रहा है तो 80 × n - 1 हो जाएगा Atn की जगह, यस सर। और ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था तो इन्होंने इसको भी नेगेटिव कर दिया। ठीक ठीक है। है, और n की जगह n - 1 डाला तो n - 1 + 1 n रह गया, हाँ। n - 1 -3 n - 4 हो गया, अपॉन में 3 और a। यहाँ तक सही है। Atn इसका जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -Atn + 80 बनेगा, यस सर। तो वो -Atn तो +Atn से कट गया, केवल हाँ +80 बचा, वो ये रहा। हाँ हाँ इसके बाद इन्होंने ब्रैकेट ओपन किया और इन दोनों में से a/3 कॉमन ले लिया। हाँ। a/3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा, इसको मल्टीप्लाई किया n² -3n + n -2n हाँ -3। ठीक है, और हाँ। यहाँ पे माइनस ऑफ n -4 था, तो यस सर। -n² और माइनस का प्लस का 4n, अच्छा n² हाँ। से n² कट गया, 4n - 2n 2n -3। सही तो है यार इनका भी, लेकिन इनका तो सेकंड टर्म पता नहीं यार, हो सकता है वो कैलकुलेशन एरर हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा स्ट्राइक कर नहीं रहा। आई एम नॉट सो श्योर एंड बेटर नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन इट।
अगर वो कैलकुलेशन एरर भी होगा तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं दिखेगा, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। मुझे अप्रोच जो है अपन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, जो इन्होंने दिया है लगभग लगभग अपन ने वैसे ही, बस अपन ने n का वैल्यू पुट करके देख लिया तो वो अपने को थोड़ा सा रिलेटिवली इजी सर पड़ ये जाएगा। यहाँ पर इन्होंने माइनस कॉमन लिया है क्या? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2n, अच्छा नहीं प्लस सर, ये सर इनका भी पता नहीं यार, नहीं बैठ रहा। है। Yes, sir. क्योंकि देखो इनका जो जनरल टर्म आ रहा है ना, उसमें आप n को 2 पुट करो, ये इनका जनरल टर्म है, n को 2 पुट करो, a2 क्या आना चाहिए? इसके हिसाब से तो 80 प्लस c/3 मैम n को 2 पुट करो, सर, इसमें ही एक- ना तो 4 - 3, अच्छा हाँ 80 प्लस 1/3 है। हाँ हाँ, लेकिन जब n को 1 पुट कर रहे हैं तो इनका आ रहा है 80 माइनस 1/3 है, यस सर। अपने 80 माइनस 4/3 आ रहा है, ये दिक्कत है। अब पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, कहाँ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। छोड़ने का यार, अभी देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं स्ट्राइक करेगा, वो छोड़ भी होगा तो बाद में यस वीडियो सर। देखेंगे, बेटर टू स्किप इट फॉर नाउ, वी कैन डिस्कस इट लेटर। Going ahead, next, this was question number 54. Next out, 64। सीधे 64। हाँ सर। क्या बात कर, बताने का है किसी को? यस सर। ओहो। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का वैल्यू दे रखा है। x कहाँ गया ये, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का वैल्यू दे रखा है 322। एक काम करो, प्लस कर दो 2, उधर भी कर दिया 324। यहां तक कोई दिक्कत? चले, यस सर। अभी 2 ऐड करने से फायदा क्या हुआ? होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b इक्वल टू 18। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। मतलब एक्स क्यूब को वाई लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक्स क्यूब को y, हाँ हाँ ले फिर लो, कोट। यस सर, बाय। ले लो, हो जाएगा। करके बताऊं? y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट 320 को लिख सकते हैं 64, बोले तो 8√5। 9 प्लस माइनस 4√5 है, लेकिन इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं? यस सर। इससे बेटर कुछ और करते। करें? हाँ चलो करते हैं। इस सबको हटा दो,
अपने को एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू तो पता ही है ना। अच्छा एक काम और करें यार इसमें अपनी इच्छा से, 3x 1/x x plus 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। दोनों साइड मैंने प्लस 3 × x 1/x ऐड कर दिया, ठीक है। यस सर। 3 × x 1/x और उसके आगे तो x × 1/x तो कट गया। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है मेरे हिसाब से ये a प्लस b का होल क्यूब है, विच इज इक्वल्स टू 18 + 3x + 1/x। हाँ है ना। हाँ यस सर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x + 1/x को एक बार y लूं क्या? क्यूबिक आ 18 जाएगी ना। हाँ है ना। हाँ अब यार हिट एंड ट्रायल से मुझे लग रहा है कि y का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 8 + 3 × 3 9 27। यस सर। इससे मुझे x + 1/x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे चलते हैं। x5 + 1/x5 पूछा है, किसी को इसका एक्सपेंशन आता है क्या? नहीं। सर हाँ। आदत है पर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन होता है x + 1/x, उसके बाद आता है x4 + x³ × 1/x, नहीं सॉरी -x³ प्लस x² × 1/x² माइनस x × 1/x³ प्लस 1/x4। करें? फिर ये x + 1/x को क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके x की अभी वैल्यू हो निकाल दी। जाएगा मालिक, 2 मिनट का टाइम दे दो। x + 1/x का वैल्यू आपको पता है? हाँ सर x4 + 1/x4 का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर x + 1/x का पता है तो स्क्वायर और स्क्वायर 2 बार करके। हाँ अच्छा सॉरी ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? एक सेकंड याद है इसको बताओ। हाँ ये कट के हो गया 1, हाँ और ये इन दोनों में से ये हो गया x² और ये हो गया 1/x² माइनस x² + 1/x²। इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। हाँ सर सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? आ जाए। करके बताऊं क्या? नहीं नहीं। ये ऐसे ही होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ हो गया मैडम। ये हो गया 3, ठीक है। यहां से देखो स्क्वायर कर रहा हूं, क्या आएगा? x² + 1/x² प्लस 2 इक्वल टू, 9 तो ये हो गया 7। 7 हाँ। x4 प्लस, वापस से स्क्वायर कर रहा हूं, x4 + 1/x4 प्लस सर वापस से 2 इज इक्वल टू 47। 47। हाँ है ना। हाँ यस सर। 47 हाँ 48 हाँ -7 41 यस सर। 123। ओके सर। बैठ गया। चले आगे। हाँ सर। यस सर। स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, इतनी मेहनत। एरिया अरे, बढ़िया नहीं लग रहा कि स्क्रीन? बढ़िया लग रहा है सर। वॉलपेपर बना लो।
हटा दूं? यस सर। बहुत दुख हो रहा है ऐसे। गया। चलो नेक्स्ट प्लीज। 50 50 बताना है किसी को? क्या बात नहीं। कर रहे हो? ये नहीं क्या तुम? हाँ मीटिंग नहीं है, मैं ये देखा नहीं। नेक्स्ट 52 बताना है। हाँ सर। Yes, sir. क्या है ये? 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, 3 into 3 factorial up to this is a multiple of prime p, then p lies in the range. अरे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सही में बताना है क्या? वो मतलब सिर्फ ऐड यस करके सर। नहीं ऐसे इतना इलॉजिकल नहीं होता है। बताऊं क्या? हाँ हाँ बेशरम लोग। देखो अब ऐसे जादू होने वाला है। 1 को 2 - 1 लिख दूं, 2 को 3 - 1 लिख दूं, हाँ 4 को सॉरी 3 को 4 - 1 लिख दूं, हाँ इसको 121 - 1 लिख दूं। हाँ sir. पहला ब्रैकेट 2 into 1 factorial 2 factorial minus 1 factorial plus 3 factorial minus 2 factorial plus 4 factorial minus 3 factorial plus 121 factorial minus 120 factorial। हाँ या ना? हाँ sir. हाँ सब कुछ करेंगे। 121 factorial minus 1। हाँ शर्म आ रही है तुमको? आज ही बता के आया हूं ये क्वेश्चन। कहाँ पे? अरे कहाँ पे बता के आऊंगा? आज लाल कोठी गया था तो। सर ये वो वाला क्वेश्चन थोड़ी है। ज्योति है क्या मीटिंग में? यस सर, ये सेम। वही है। सुन अरे लिया? यार सर हाँ सक्षम से सर। पूछ लो सर। सक्षम हाँ सर। ये सेम आज बताया नहीं था सर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो याद है। हाँ तो थोड़ा अब थोड़ा तो देख इसको याद है भाई, बताया तो पूरा था। आप पूरा सर नहीं, बताइए मैंने ना। पूछा था कि इम्पोर्टेंट है, आपने बोला नहीं है। हाँ नहीं है तो अभी भी बोल रहा हूँ नहीं है। मैं अभी बता भी दूंगा तुमको, क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा याद है, इसके बाद के एग्जाम में याद सर रहेगा। तभी तो ये दोनों भूल गए, मेरे को तो याद है अभी भी। अरे तो प्रॉपर ये क्वेश्चन थोड़ी था वो। अरे भाई कॉन्सेप्ट तो यही टाइप लग रहा का था ना, था। सॉल्विंग मेथड तो यही हाँ। था। बिल्कुल से बिल्कुल। चलो ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। हाँ ये एक ऐसे प्राइम नंबर का मल्टीपल है, एक ऐसे प्राइम नंबर है पी जिसका ये मल्टीपल है। बराबर? यस हाँ सर। सर। तो पी क्या होगा? सर बिलो 121 कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, लॉजिकली सोच के देखो। सर 11 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए क्या 3 ये? फैक्टोरियल माइनस 1 कितना होता है? 5। विच इज अ मल्टीपल ऑफ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। हाँ 4 फैक्टोरियल माइनस 1 कितना होता है? 23। विच इज अ मल्टीपल ऑफ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। 5 फैक्टोरियल माइनस 1 कितना होता है? 119। 119। 119। विच इज इक्वल टू which is a multiple of a prime number greater than 5। हाँ, यस सर। it should be a multiple of a prime number greater than 120। यस सर। क्लियर है?
Yes, यस sir. सर। सर मुझे नहीं आया ये लास्ट वाली चीज। अच्छा लगा क्या? नहीं सर, आया नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना सर। नहीं बता रहा मैडम, दूसरी बात। अच्छा ही नहीं लग रहा आपको तो अरे क्यों मतलब? अरे मैडम देखो सुनो, 3 फैक्टोरियल -1 5 होता है। हाँ हाँ बोलने का है ना। मैडम हाँ भाई क्या यार, बोल तो रही है कुछ तो कट कट के आवाज आ रही है। सर मैम हेलो, एयरटेल का यस ब्रॉडबैंड सर, लगवा अब लो ना। नाउ यू। अरे मैं तो हमेशा ऑडिबल रहूंगा, आप नहीं हो ऑडिबल। सर पता नहीं आज इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना मैडम, कोई ना, एयरटेल का लगवा लो, अच्छा आता है। ओके सर। मैम देखिए 3 फैक्टोरियल -1 होता है 5, जो कि एक प्राइम नंबर 5 का मल्टीपल है, एंड दिस 5 इज ग्रेटर देन 3। हम्म 4 फैक्टोरियल -1 होता है 23, जो कि 23 का प्राइम मल्टीपल है और विच इज ग्रेटर देन 4। 23 का हाँ। 5 फैक्टोरियल -1 होता है 119, जिसको हम्म फर्दर लिखोगे 7 × 17। तो इसके जो दो प्राइम फैक्टर्स है ना, दोनों 5 से बड़े हैं। हम्म तो 121 फैक्टोरियल -1 जिसका भी प्राइम फैक्टर होगा, इसका जो भी प्राइम फैक्टर होगा वो 120 से बड़ा ही होगा। हम्म तो दैट इज द करेक्ट आंसर। वही तो पूछा है, पी की रेंज क्या है। अच्छा, ओके सर, आ गया। अभी क्लियर है? शैल आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 56। 56 पता नहीं क्या किसी को? यस सर। मतलब सर वो थ्योरम व्योरम अभी आती नहीं है, वैसे अरे बता पूछ लो यार, अब पूछने में हाँ तो कर ही दिया। बता दो। चलो मत ही नहीं सर एक काम करोगे छोटा सा, हाँ बोलो। हाँ सर। तो हाँ बोलेगा ना इंसान, तभी तो पता चलेगा ही करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल। करोगे? तो एक छोटा सा बताओ काम सर। ये कर दो कि n नेचुरल नंबर क्या पुट करना चाहते हो, आपको ये बताओ। 1। 1 कर दिया। 13 की पावर 4 - 2 कितना होता है? 2। 2। 13 की पावर 2 कितना होता है? 169। 3 की पावर 8 - 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 81। -17। जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है? कर रहे हैं। यार 233. 250 हो रहा है ना। 233 सर। 233 डिवाइडेड बाय 250, रिमाइंडर बताएगा कोई? 233। जादू? तो सच में जादू है। अरे क्या है यार, तुमको बोल रखा है, तुम्हारी जो इच्छा है करो यार, तुम्हारा विषय। पता नहीं वैल्यू भी नहीं पुट करते तुम लोग। बढ़िया नहीं है? वाओ सर। थैंक यू सो मच सर। इसके तो वाव में भी दर्द लगता है मेरे को। नहीं बट थैंक यू फॉर द रेसिप्रोकेशन सर। हटा दूं? पर सही में क्या? हटा दूं क्या? बता दो। हाँ सर, हटा दो। नेक्स्ट। 58। बताने गए? हाँ। यस सर। देखते हैं। If fx plus thrice of f1/x equal to 3x square plus 5x when x is not equal to 0, s equal to x belongs to real numbers, fx equal to f of -x, then s चलो करके देखते हैं यार। एफ एक्स प्लस थ्राइस f1/x इक्वल टू 3x² प्लस 5x। कोई दिक्कत? नहीं। नो x की सर। जगह x की जगह अगर मैं 1/x पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? f 1/x। f1/x। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। अरे यार सॉरी।
एक सेकंड का टाइम दीजिए। f1/x और 3 f1/x की जगह 3 fx इक्वल टू 3 1/x का होल स्क्वायर प्लस। प्लस 5/x। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। जब कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस दिख रहा है ये, यस सर। एक बार दोनों को ऐड कर दूं। यस सर। 4 fx प्लस f1/x यस सर। इक्वल टू 3 x² प्लस 1/x² प्लस 5 x प्लस 1/x। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब नहीं यार, छोड़ो ना, ऊपर वाली से नीचे को करता है, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। -2 fx माइनस 1/f(1/x) है ना, यस सर। इक्वल टू 3 x² माइनस 1/x² प्लस 5 x माइनस 1/x। यस सर। एक काम करो, ये 4 को मैं ले गया डिवाइड में, कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां से हटा दूं। यस। ये -2 को भी ले गया डिवाइड में, कोई दिक्कत? नो सर। और यहां से हटा दूं। अरे कौन चिल्ला रहा है वीडियोस वाली बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, f(1/x माइनस अच्छा नहीं, ऐड कर दूं, यस सर। f(1/x और माइनस f(1/x) कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ fx बचे। ट्वाइस ऑफ fx का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? 3x² 3/4x² प्लस 1 3/4/x², 3/2x²। क्या आएगा, जल्दी से कोई करके बताएगा क्या? 3x² प्लस 3/4x² माइनस 3x² प्लस 3/2x² प्लस 5x/4 प्लस 5/4x माइनस 5x/2 प्लस 5/2x। थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 4 minus 3x square upon 2. Can I say it is minus of 3x square upon 4? यस सर। 3/4x square plus 3/2x square. क्या हो गया? 6/4 9/4x square 9। हाँ। यस सर। plus 5/4x और minus 5/2x minus 5 माइनस 5x/10। minus 5x/4 होगा ना, यस सर, सॉरी 4। and plus 15x/4। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। एनीवन? नो सर। चलो, इससे फाइनली fx का वैल्यू निकाल लूं। निकालू क्या? यस सर। जवाब तो देने का है। 9/8x² माइनस 3x² अपॉन 8 प्लस 15/8x माइनस 5x/8। यहां तक fx पता चल गया।
अब एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। निकाल लूं? यस सर। और वो दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे, तो इधर ही निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहां से बोलो। 9/8 x स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। सेकंड वाला भी एज इट इज रहेगा। -3 x स्क्वायर/8 भी एज इट इज रहेगा। +15 प्लस का ये माइनस -15/8x हो जाएगा। यस और ये सर। +5x/8 हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। -15/8x इधर आके +15/8x हो जाएगा, यानी 30/8x इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 10x। 10x 8 से 8 काट दूं, 0 से 0 काट दूं। x² इक्वल टू 3 x इक्वल टू, 2 अरे ±√3। ±√3 हाँ। contains exactly two values। तो ये क्या, यस सर। मजा आया क्या? सर ये इसका कोई और ऑल्टरनेट मेथड नहीं होता सर? मैडम एक तो मेरी बात सुनो, ऐसे सर क्वेश्चन मैंने मुझसे पूछ रहे माना, हो। मतलब आपने स्क्रीन पे अभी खुद ने करा है, पर सर कोई मैम मैं जुगाड़ वाला मेथड। सच बोल रहा हूँ, झूठ वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, मैंने पढ़ के नहीं आता हूँ ये क्वेश्चन पहले से। मैं ऑन द ओके स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ओके सर। इसका क्या ऑल्टरनेट बताऊं मैं आपको? सर देखो, ये आधा करते करते तो एग्जाम में शक होने लग जाएगा कि मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं। तो मैंने आपको कब बोला ही करने के लिए? ओके सर। मैडम टाइप 3 क्वेश्चन है, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो। बाकी डुएबल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं करके लाने का है। अनटिल और अनलेस आपके 22 में से 15 सही हो। समझो, ओके सर। इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, इसको क्यों उठाने का है? 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी ऐसा कोई केस आता है ना, जहाँ पे एक fx है, एक f1/x है ना, या फिर और कुछ मान लो, आपको दे रखा है f7 प्लस x-7, ऐसा कुछ भी दे रखा हो ना, तो आपको दोनों फंक्शंस का वैल्यू निकालने का तरीका एक ही होता है। इसको fx ले लो, इसको x-7 ले लो। ठीक है। एक बार x को x पुट करो, एक बार x को 1/x पुट। ओके सर। यही तरीका है जो मैंने यहाँ पे किया। ये अप्रोच मुझे पहले हाँ। से पता था कि एक बार x, एक बार 1/fx पुट करूंगा ना, तो मेरे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आ जाएंगे जिससे मैं fx का वैल्यू निकाल दूं। तो इतना सब कुछ करके मैंने, जो लेंथी पार्ट है ना, वो केवल fx का वैल्यू कैलकुलेट करना लेंथी पार्ट है। इसके बाद मुझे दिखा था fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स है, तो मैंने वो हाँ। पुट कर दिया। पुट कर दी तो आपको सबको समझ में आ गया कि यार ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है, अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, दो ही रूट्स आने वाले हैं। यस सर। तो वो बाद में जाके स्ट्राइक कर गया, ओके सर। लेकिन देखते ही तो ना कर पाएगा। ठीक ओके है, सर। चलो चले हाँ। जाते हैं। यस सर। अरे मैम स्क्रीनशॉट तो ले, मेहनत सर तो मैं देखो सामने वाले लिया बंदे था। ले लिया। हाँ। मैडम 2-3 वॉलपेपर दे दिए, रोज बदल बदल के लगाना। ओके सर। नेक्स्ट प्लीज। 59। बताने का है किसी को? नो सर। किसी को भी नहीं, चले आगे। 60। बताने का है किसी को? बता दो। बता देते हैं। fx equal to mod x plus mod of x minus 5 plus mod of x minus 10 up to mod of x minus 5t, where x is an integer and t is a positive integer, find the minimum value of fx when t equal to 10। अगर t equal to 10 है तो fx क्या होगा? mod x plus mod of x minus 5 plus mod of x minus 10 plus टिल x माइनस 50। 50। हाँ, करें आगे।
अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है वो बताओ। जब ये मल्टीपल मॉड्स आ रहे हैं ना, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकता है कोई? पहले वाले का, 0, दूसरे वाले का, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, या तो आपके नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ऑड, या फिर होंगे इवन। हाँ है ना? यस सर, हाँ। अगर ये ऑड है तो आपको क्या करने का है, एक्स को मिड वैल्यू लेने का। करके देखें, क्योंकि ऑड है, ये तो दिख रहा है ना, ऑड है, 11 वैल्यूज है। यस सर। तो पूरा लॉजिक यहां तक क्लियर है? हाँ ऑड, तो एक बार पुट करना जल्दी से। पहली वैल्यू क्या हो गई? 25, प्लस 20, 20 20, हुआ ना, 25 माइनस 5, 20 प्लस 20, 10, प्लस 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 0, बीच में 25 मॉड 25 Yes. आएगा, 25 माइनस 25 फिर -5। अरे मॉड है भाई। अच्छा सॉरी, हाँ 5, यस 5, सर। 10, 15, 20, 25। 25। इन सबको ऐड करेगा कोई? 15, 10 पे कितना हो रहा 150 है? आ रहा है कितना आ रहा है? 150। 150। सर ये हमेशा मिडिल वैल्यू पे क्यों लाई कर रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन, अभी बताते हैं। फंक्शन तक का वेट करोगे या अभी पूछना चाहते हो? अभी बता दो सर। हाँ, तो आप बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये समझ में आ गया, हटा दो इसको। यस सर, स्क्रीनशॉट नहीं आता है क्या? ले लिया सर। नहीं, वो दीक्षा नोट कर रही है, मैडम बोल रही है नहीं अच्छा स्क्रीनशॉट। ओके ओके। हाँ, मीनवाइल जो मैं बोल रहा था वो बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑड होंगे तो मिड पॉइंट लेना है, इवन यस होंगे सर, तो बीच के दो का। बीच के दो का कुछ भी वैल्यू ले लो। मतलब हाँ लेट्स अज्यूम अगर ये मेरा 55 तक गया होता तो, ओके जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। हाँ, सो यस वी वर टॉकिंग अबाउट इट। मैंने बोला 55 तक ले जाता हूँ। 12 पॉइंट्स हो गए क्रिटिकल। बीच वाले दो यस पॉइंट्स कौन सर, से हैं? 25, 30। हाँ। आपकी जो इच्छा मन करे 25 और 30 के बीच में वैल्यू ले लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में वैल्यू लेनी है या फिर ओके ओके सर। दोनों के बीच में। अभी पूरा लॉजिक समझा रहा हूँ, एक बार ही समझ में आ गया यस सर। है ना? आप 26 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप ओके 27 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 28, 29, 30, 30 भी ले सकते हो, चलो 25.95 लोगे तो भी आंसर सेम है।
आंसर हमेशा सेम ही रहे। क्लियर है? ओके सर। चलो अब लॉजिक समझा देता हूँ। हाँ। ये हटा दो पूरा। यस सर। 3 वैल्यूज लेके चलते हैं मैम, जो इच्छा है बोल दो। मॉड ऑफ एक्स, बोलो, एक्स प्लस 2 इसी में प्लस से अच्छा ओके। एक्स प्लस 4 और कुछ 4 एक्स x माइनस प्लस 7 ले लो, ओके ठीक है। चलेगा? इसको मिनिमाइज यस करने सर। का है आपको, बराबर? क्रिटिकल हाँ। पॉइंट बोलो जल्दी से। -2 -4 7। अब यार मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? आप बोलोगे पॉजिटिव वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी नहीं, की भी। मॉड रिप्रेजेंट करता है आपका एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लाइक सपोज हाँ। आपकी जो इच्छा है एक्स का वैल्यू बोलो, -4 से छोटा, -8 -8। इफ यू आर टेकिंग इट टू बी -8, -8 प्लस 2 कितना होता है? -6 अच्छा पहले इस ब्रैकेट से चालू करते हैं क्योंकि ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है। -8 प्लस 4 कितना होता है? -4 -4। और मॉड के बाहर कितना आएगा? 4। 4। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -8 और -4 के बीच का गैप 4 पॉइंट का है। यस सर। -8 प्लस 2 कितना होता है? -6 बाहर मॉड के बाहर 6 क्या आएगा। आएगा? 6। 6। इनके बीच में देखो 6 का गैप है। यस सर। -8 -7 कितना होता है? -15 बाहर आएगा +15। इनके बाहर बीच में 15 15 का का हाँ। गैप। यस सर। आप सारे डिस्टेंसेस निकाल के आईडी तो कर लो, 4 + 6 + 15। हाँ यस सर। तो अगर आप इस वैल्यू को -4 के लेफ्ट में लेते रहोगे हाँ तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ता जाएगा सर। बढ़ता जाएगा। हाँ। तो -4 के लेफ्ट में नहीं लेना, ये समझ में आया? यस सर। चलो अब फॉरगेट अबाउट -2। आप -2 को एक बार भूल जाओ। मैं एक बार ये हम्म। हटा लेता हूँ। ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये भी 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 मेरे काम का नहीं है, और ये भी हटा दो। ये सब काम का नहीं। अच्छा एक काम करो, इसको भी हटाए दो। आप -4 के से 7 के बीच में जो इच्छा है वैल्यू ले लो। बोलो क्या लेने की इच्छा है? 1 1। अगर आपने ये रहा, यहाँ पे 1 लिया, तो -1 1 -7 6 1 + 4 आंसर 5। 11 आना चाहिए इन दोनों को सॉल्व करने पे। यस सर। चलो ठीक है, मेरी 1 लेने की इच्छा नहीं थी, मैं तो कुछ और लेना चाहता हूँ। क्या लूं? 0 ले लूं क्या? ठीक है। 0 -7 सर 7 और में बाहर 7 आएगा, और 0 -4 4 तब भी तो भी 11 आंसर 11 ही आएगा। यस सर 2 ले लूं क्या? दिस इज तब भी 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6, तो भी आंसर 6 11 ही आएगा। मतलब यस सर। मैं -4 और 7 के बीच में जो इच्छा है आप वैल्यू लोगे, आंसर तो हमेशा 11 ही आएगा। हाँ चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि मेरे को वैल्यू -4 और 7 के बीच में लेनी है। ठीक है? यस सर। अब क्या हुआ? अब आया एक तीसरा पॉइंट -2। देखो हम्म। मैं जो डिजायर्ड पॉइंट है ना उसको अगर यहां रखता हूं तो एक डिस्टेंस ये 2 11 तो आएगा ही आएगा। हाँ। उसके साथ एक एडिशनल डिस्टेंस और आ रहा है। हम्म। अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो भी ये 11 तो आएगा ही आएगा, और ये एडिशनल डिस्टेंस और आ रहा है। मैं चाहता हूं इनका सम मिनिमाइज हो जाए, तो इस पॉइंट को -2 से पास लाऊं या दूर ले जाऊं? पास लेकर आएंगे। क्योंकि मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट, जो मेरे को आंसर निकालना है ना, एक्स का जो वैल्यू पुट करना है, वो हम्म। -2 के जितना पास होगा उतना छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि 4 और 7 से तो वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है हमेशा। यस सर। -2 के कितना पास ला सकते? सर वही पुट कर दो। -2 पे ही ले आओ ना, 0 हो जाएगा ये वाला तीसरा हाँ वैल्यू आपका। -2 यस सर। तो 3 मॉड होते हैं, तो जो मिड क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका आंसर होता है। क्लियर हुआ? यस सर हो ये गया। 5 पे लगा दो। हाँ 5 में क्या आ गया। होगा? 5 में ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स और आ गए, तो भी हाँ डिपेंडेंसी तो इस पे ही रहेगी। यस सर। अब 5 की जगह 4 हो, 4 की जगह 2 हो, तो मैंने 2 में क्या बोला आपको? मेरे पास 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है, 4 और 7 के बीच में जो लेने की इच्छा है ले लूं। हाँ सेम ही आएगा। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनके बीच में कुछ भी लेने की इच्छा है ले लूं। यस सर। इसलिए मिड वाले 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर हुआ? यस सर। पूरा एक्सप्लेनेशन। शेल वी गो अहेड? यस सर। यस सर। चलो फाइन, हटा दो ये सब थैंक यू कुछ। सर।
अरे मैम, यू Yes. शुड बी थैंकफुल टू मी फॉर दिस. Yes, sir. I'm thankful to you. ये जान नहीं की तो थैंक यू बोलिए तो. नेक्स्ट प्लीज. 61. बताने का है किसी को? नहीं. पक्का? हाँ. किसी को पूछने का है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चल रहा हूँ. बच्चे कितने हैं? 10-12 बच्चे. 13. एस्टिमेट तो मेरा सही. No, sir. anything. चलो नेक्स्ट प्लीज. ऐसे हुआ है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के. सॉरी. क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के हुआ है ये. x+5. हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के ही होगा सर, कोई तरीका नहीं. 65. 65. बताने का है किसी को? सर प्लीज एक बार 62 बता दीजिए सर प्लीज। मालिक 62 तो मैं बता चुका हूँ. ओके सर, ओके ओके। 65 बताने का है किसी को? हाँ सर एक बार बता दो। दो तो बाहर में वैसे भी नहीं बताते इनसे. Let n be a positive, least positive integer such that 486 is a factor of 1536 की power n. M is the least positive integer. 1536 की power n is a factor of 486 की power n. क्या बकवास लगा रही है यार. गोल गोल घुमा रहे हैं यार, क्या बकवास है. 486 का फैक्टर बताएगा कोई? 486 243. सही है क्या? Yes, sir. चलो बढ़िया है. 1536 का फैक्टर बताएगा कि कोई? 768 का 34 नहीं. करो 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 जल्दी निकाल दो. अरे यार ऐसे लिखो ना. ए भाई रुको. 1536 है ना? 3 4 7 into 13 into 4. 9. क्या बात कर रहे हो मैडम? 9 into 3. यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल देगा प्लीज. नो नहीं सर सर. नहीं है यहाँ तक दिक्कत। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. यार देखो, अब आप क्या चाहते हो, इसमें एक ऐसी पावर लगा दूं कि ये 486 का मल्टीपल बन जाए, बिकॉज 486 इसका फैक्टर है, बराबर? हाँ हाँ. वो जो नंबर चाहिए, अगर वो 486 का मल्टीपल चाहते हो तो उसमें 3 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए 5. और 2 की मिनिमम 5 पावर कितनी होनी चाहिए? 1। 1. 2 का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड है. Yes, हाँ sir. 3 का नहीं है, तो 3 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए n को कितना रख दूं? 5. 5। यहां तक किसी को दिक्कत आई तो बोल दो. 3 के ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 45. सॉरी 45. 2 की पावर 45। 45 इंटू 3 की पावर 5. और ये था 2 इंटू 3 की पावर 5. अब ये इसका फैक्टर बन गया. हाँ Yes, sir. समझ में आ गया यहां तक? ये तो समझ में आ गया. n5 है. आगे बोलते हैं. अब 486 की पावर m 1536 की पावर 5 का मल्टीपल होना चाहिए. मतलब वो 2 की पावर 45 3 की पावर 5 का मल्टीपल होना चाहिए. मतलब 3 की मिनिमम कितनी पावर चाहिए आपको? 5. इसमें 5। 3 की मिनिमम पावर चाहिए 5. और 2 की 5. 2 की 1। कितनी चाहिए? अरे 1। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा भाई?
हाँ, 45 नहीं 45 चाहिए 45 हाँ सर 45 और सॉरी 2 की पावर 1 है तो पावर m को कितना लगा दूं 45 तो बन जाएगा हाँ 2 की पावर 45 और 3 की पावर 225 और ये हाँ हाँ सर इसका मल्टीपल है हाँ है ना हाँ तो m प्लस n कितना हो गया 50 क्लियर है हाँ सर क्लियर है नेक्स्ट वही सर हो गया क्या बात कर रहे हो सही में हाँ एक तो और पूछ लो पूछेंगे सर अब। हटा दोगे ये सब कुछ सर आप डिनर पे नहीं गए क्या हटा दोगे ये सब कुछ हाँ सर चलो fine so finally with this we are done with the discussion of AIMT 2 quant section